once somebody has asked from Faraday, he was a famous physicist, that if there is a catastrophe, अगर मान लीजिए प्रलय आ जाती है and everything is going to be annihilated, पूरी तरीके से विनाश हो जाए, then in that case if you want to leave a chit for the forthcoming generation, then what you will write in a single sentence. So Faraday has told that I will write that the elements, the properties of elements are periodic in nature. That means if I will write this sentence, I will give this hint to them, they will find the complete science within 100 years, because this is so important. And इस चीज़ को पता लगाने में कि इनमें एक पीरियोडिसिटी है, ये पता लगाने में साइंटिस्ट को 2000 साल, और उससे बीसी को तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, आफ्टर एडी, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट 2000 साल तो लग ही गए। सर किस फिजिसिस्ट ने कहा था? यानी फैराडे ने ये बात कही थी कि हम एक चीज छोड़ के जाएंगे जिसमें ये लिखा रहेगा जितने भी एलिमेंट्स मिलते जाएंगे उनमें कुछ पीरियोडिसिटी है, दैट मीन्स देयर इज सम पैटर्न। तो इट इज सो, एंड नाउ एंड देन देयर वर सो मेनी क्लासिफिकेशन डन बाय साइंटिस्ट। अर्लियर देयर वर ओनली 17 एलिमेंट्स, at the time of Mendeleev there were 67 elements, and in the lifetime of Mendeleev when he died there were 93 elements, and now it is 118 elements. This is a family of chemistry, and if we do not know the pattern of them, then it is very difficult to enter into chemistry, take a ticket to go into chemistry. So from 9th onwards it is so essential that it is taught up to MSc. There is also in MSc chemistry what I have done, there was periodic classification, and there are the two charts which are sold in Chandni Chowk. One is periodic classification and other is human genome chart, and you will see hanging this chart everywhere, anywhere in laboratory. It is so important, it cannot be avoided. So it is such an important thing, because it is the key to enter into chemistry. So under these attempts there were certain scientists who have done such classification. So first is Dobie-Riener's triad. उससे पहले Lavoisier, Anthony D. Lavoisier has classified that elements are of two types, metals and non-metals. After that, the first systematic classification was done by Dobie-Riener. So Dobie-Riener's triad. Now out of the elements present at that time, almost 16-17 elements were present at that time, and he has picked up a group of three elements in increasing order of their atomic mass. So he has made a triad. तो उन्होंने क्या किया, like this. He has made a triad. Triad means कि तिकड़ी बना देना, जैसे कि लीना के, LINA, ओके, लीना के रब CS पर है, सो लीना के रब CS पर में LINA के, तो उन्होंने ट्रायड बनाया, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 723 and this is 39, and he has shown that these are having similar properties. Why these are having similar properties? These are active metals. If they are put in water, then they catch fire easily. सब में आग लग जाती है, पानी में डालने से आग लग जाती है. So by just putting in water, that video I have shown you several times, that is the nature of alkali metals. ऐसा तो हमने कई बार दिखाया, फ्रांशियम तक दिखाया, उसके आगे शिप है तो वो आग लग जाती है. तो that we have seen that फिर दिखा देंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना एल्कली मेटल्स का, दिखा देंगे चाहे आप सोडियम पोटेशियम कुछ भी डालें आग लग जाएगी, इट कैचेस फायर. सो 23, इट इज 7 + 39/2, that is 46/2.
So it is. So he has shown if similar kind of elements are arranged in increasing order of their atomic mass into triad. Triad का मतलब तीन के ग्रुप में. Then the atomic mass of middle one is arithmetic mean of top and below, and not only the atomic mass, the other properties like density, boiling point, everything is arithmetic mean of this and this. What are the different other properties that way you will learn in class 11. It is only extended there. However, वहाँ आप density भी देखोगे, atomic radii भी देखोगे, anything you will see that everything is arithmetic mean. तो क्या इनका रूल है कि if similar kinds of elements are arranged in increasing order of their atomic mass in triad, तीन का ग्रुप बनाना, then the properties में density आ जाएगी, atomic radii आ जाएगी. These are physical properties, and atomic mass are arithmetic mean of other two elements. So इन्होंने कहा then the properties and atomic mass of middle element, जो middle element होगा उसकी properties वो किसके इक्वल होगी? तो atomic mass and physical properties of middle element, it is arithmetic mean of other two elements. So out of 17 elements he has made 3 triads. One is this triad, the other one is C Kasarba. Kasarba. That is Bemag Kasar Bara, second group. Bemag Kasar Bara. तो उसमें इसमें लिया इन्होंने एटॉमिक मास. एटॉमिक मास इसका 40 है, बेरियम 56 होगा. इसका देखो स्ट्रॉन्शियम का क्या लिखा हुआ है. So स्ट्रॉन्शियम 87.6. 88 इन्होंने लिया है, 88 and this is 137. So let us find out mean of atomic mass of calcium and barium. So mean of atomic mass of calcium and barium. This is 40 plus 137 by 2. So it is 177 by 2. That it is 88.5. So it is 88.5 U, which is nearly equal to, it nearly resembles 88 U. थोड़ा तो अप्रोक्सीमेशन है. सर बुक में 87.6 ही लिया. 87.6 लिया. किसका दिया है? सर स्ट्रॉन्शियम का. 87.6 आप भी ले लो, जो बुक में ले लिया है वही ले लो और फिर हम उससे चेक कर लेंगे ना. So 87 और 137.3, तो 87.6 ले लो और 137.3. तो अब इसको क्या करें? So that is 137.3. तो it is 7.3. तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? Now 88.2 से करते हैं तो this is 8. तो 16 फिर 13 बच जाएगा, तो 6 आ गया. तो कितने U आ गया? या 65 U. तो अप्रोक्सीमेटेड तो है, फिर भी हम ये मान सकते हैं कि उसके इक्वल है. 1/3 triad is made chlorine, bromine, iodine. That is ये 17 ग्रुप देखो, फूटे कुल्हड़ बारात आई, FCl BRI. So that is, इसमें इन्होंने 3 चीजें ली हैं, Cl BRI, and their atomic masses are taken as
atomic mass 35.5 U in U. Okay, 79.9 U and 126.9. So the atomic mass of middle element, it is mean of the atomic mass of other two elements if they are arranged in increasing order of their atomic mass or increasing order of their properties, gradual changing properties. आप उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं. तो ये देखा गया कि मीन मास ऑफ ClNi, तो क्या पाया गया? दैट इज 35.5 plus 126.9 upon 2. So it is 4. Sir, 162.4 आ. 162.4 by 2, it is 81.2, which is nearly equal to 79.9 U. तो इस तरीके से इनका 3 टाइड है, ये तीनों टाइड हमें तैयार करना है. Now, see, सर इसका तो सिर्फ एक ही ट्रायल मतलब पूरा वो हुआ था सक्सेसफुली पता चल रहा है. क्या सर इसका तो एक ही ट्रायल मतलब बता रहा है कि वो एग्जैक्ट सक्सेसफुल है, अदरवाइज इट इज ऑल अप्रोक्सीमेटेड, इट इज ओनली मैनिपुलेटेड. ये एक तरीके से जुगत लगा के काम करने वाला हिसाब किताब है, अदरवाइज इट इज सो. सो व्हाई नाउ हियर इट इज लिमिटेशंस ऑफ डोबी लीनियर स्टैंड. व्हाट इनके ट्रायल की क्या कमियां थी, व्हाट वर डीमेरिट्स, लिमिटेशंस भी बोल सकते हो और डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हो. सो ही हैज नॉट कवर्ड all elements, that is 17 elements were discovered at that time. The actual mean resembles only to is approximated to the theoretical value of middle element. So atomic mass of middle element is only approximately equal mean of other two elements in triad. The three elements were randomly picked up. इसके लिए कोई सिस्टम तो दिया नहीं, कहीं कहीं से उठा लिया है ना. So for making triad, three elements were randomly picked up. So these are the drawbacks present, inherent drawbacks in Dobie linear triad. Okay. Now, when it is so premature, primitive, let us switch over to some better classification of elements. We classify elements so that there is a systematic study of this. We can study systematically in order. That's why we classify elements. Like we have seen, there are three atomic structures we have studied in class 9. These were Thomson's atomic model, Rutherford's atomic model, and Neil-Bohr's atomic model. 3 models you have studied. Yes, sir. And now 3 more will come in next class. Then others will come in next class. So you will come across up to 12 models. So, but
it earlier stage it is show. सर डीमेरिट्स मत मिटाइए. Okay. Now, Schrodinger's model, Heisenberg's model, other models, de Broglie's model. There are so many models. And nanophysics, quantum physics that we will study in later classes. So, next classification is Newland's law of octave. So, this is Newland's law of octave. न्यूलैंड का अष्टक नियम. अष्टक नियम इसका क्या मतलब है? सर 8 मतलब एलिमेंट होना. जैसे ये इन्होंने बताया कि लाइक देयर आर 7 नोट्स इन म्यूजिक एंड 8th नोट रिजेंबल्स विद द फर्स्ट नोट. सा रे गा मा पा दा नी सा. फिर उसके बाद उससे हायर नोट पे चला जाएगा. वही चीज आप देखेंगे किसी हारमोनियम में सा रे गा मा पा दा नी सा है, फिर सा रे गा मा पा दा नी सा उससे नेक्स्ट नोट पर है, और उससे ऊंचा बजाना है तो उससे ऊंचा, लेकिन है वही 7 स्वर. 8वां स्वर पहले से रिजेंबल कर जाता है. सो ही हैज शोन दैट नेचर हैज सिमेट्री लाइक इन म्यूजिक देयर द 8th नोट रिजेंबल्स विद द फर्स्ट नोट. So if we arrange the elements in increasing order of their atomic mass, then every 8th element has the properties with resembling with the first element. जैसे इन्होंने संगीत से जोड़ दिया. So like in music. तो इसीलिए अष्टक नियम कहा गया. जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर पहले से मेल खा जाता है. So 1866 John Newland. He has shown that if elements are arranged in Halebe-Baknov, Halebe-Baknov, तो अब F यहाँ आ गया. देखो we have seen it that Halebe Baknov, मीना मग आलसी. लीबे बकनॉफ, मीना मग आलसी, पीएस कलर के का. आलसी पीएस कलर के का. सो दिस इज ही लीबे बकनॉफ, मीना मग आलसी, पीएस कलर के का. दीज आर सीक्वेंशली आलसी पीएस कल अर के का. दीज आर फर्स्ट 20 एलिमेंट. देन 20 से आगे 30 कटी विक्रम न फेको निकूजन. फेको निकूजन. This is mnemonics. A trick to Skati, Vikraman, Peko, Nikuzan. So here at that time these elements were not discovered. These noble gases. Though these are arranged in increasing atomic number. इनका एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ रहा है, एक एक प्रोटॉन धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं कि नहीं. So here these elements were not present at that time. So here we have skipped helium. Here after fluorine we will skip fluorine के बाद देखो नियॉन है. नियॉन को हम स्किप कर देंगे क्योंकि उस समय था ही नहीं. इनर्ट गैसेस जब उसकी कोई केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है, so it remain undetected at that time. So ही लीबे बकनॉफ, मीना मग आल सी, पी एस सी एल लिखना, ए आर फिर छोड़ देना, कलर ए आर छोड़ देना, के का आफ्टर दैट क्रोमियम. अब इसके बाद इन्होंने फिर यहाँ से पिकअप किए हैं. क्रोमियम पिकअप कर दिया, बीच बीच से ऐसे टाइटेनियम. क्रोमियम करने के बाद यहाँ आ गई है टाइटेनियम, मैग्नीशियम,
ये ले लिया सर मैग्नीज। स्कैंडियम नहीं होता क्या इसका? हाँ? सर उस समय स्कैंडियम डिस्कवर नहीं हुआ था? बहुत सारे नहीं थे उस समय, इनके टाइम पे जो एलिमेंट्स थे टोटल 34 थे, तो बहुत सारे नहीं थे और उनमें भी कोई ऑर्डर नहीं था, तो कहीं कहीं से कुछ भी पिकअप कर रहे हैं। फिर कोबाल्ट एंड निकिल को एक जगह ही रख दिया, ये दोनों एक प्लेस पे रख दिए, एंड फ्यूजन ऐसे कर दिया। फिर वाई, फिर नेक्स्ट वाला आ गए वाइजर नवी मॉट टू एचपी डार्क सीडी, तो इटरबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, इट्रियम, वाई का मतलब इट्रियम, तो इन्होंने इट्रियम रख दिया। फिर ऐसे और आगे चलते चले गए, तो बुक में आप देखोगे इंडियम रख दिया है, ठीक है। सो इन दिस वे ही हैज अरेंज्ड इंडियम, आर्सेनिक, सो इट इज ए पोटेंशियल पॉइजन, संख्या इसको कहते हैं कि पानी में आर्सेनिक पाया गया, लोगों की स्किन निकल गई, वाइट हो गई, तो क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, सीरियम एंड लैंथेनियम एक साथ रख दिया, सीरियम एंड लैंथेनियम एंड जर्कोनियम ऐसे। So it has taken randomly, you can see cerium is ये strontium सेकंड से आ गया, ब्रोमीन 17 से आ गया, तो 17 ग्रुप ही तो चल रहा है, फूटे कुल्हड़ बरात ऐसे करके चल रहा है, फूटे कुल्हड़ बरात 17th ग्रुप है ना। अच्छा, सो इसको देखें एक बार, here we can see if elements are arranged, पहले रूल लिखें, in increasing order of their atomic masses, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले तत्व से मेल खाता है अपने रासायनिक और भौतिक गुणों में। If elements are arranged in increasing order of their atomic masses, एटॉमिक मास जानते हो, किसी एटम के अंदर जो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, 2000 गुना हल्का होता है। सो इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic masses, then he has said that every eighth element has property, then every eighth element has the property resembling to first element, ये है, जैसे इन्होंने कहा F है, so he has explained if we are arranging them in the notes do re mi fa, अगर हम इस तरीके से सारे गामा करेंगे, so do re mi fa 16 तीरे, तो इस तरीके से, तो फिर उसके बाद फिर से आ जाएगा, तो 16 टी डो आ जाएगा, सारे गामा पादा नी सा, तो नाउ सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा उससे ऊंचे स्वर में बोलना पड़ेगा, तो आप उसी स्वर में नहीं बोल सकते, सा रे गा मा पा धा नी सा, उससे बड़ा। अब फिर बोलना चाहें सा रे गा मा पा धा नी सा, उससे ऊंचा बोलिए, आपको टोन बदलनी पड़ेगी क्योंकि स्विच ओवर कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंजेस। Why it is, and he has further referred, it is because that the every eighth tone of music, जो every eighth note of music resembles with the first one, तो इस ऐसा इन्होंने कहते यही गलती कर दी थी बस, और कोई गलती नहीं की थी। So
He compared this to the octaves found in music. He compared this to octaves found in music. जैसे उन्होंने कहा संगीत में 7 स्वर होते हैं, तो 7 तरीके के एलिमेंट्स होंगे और 8th एलिमेंट जो होगा it will resemble its property. कैसे रिजेंबल कर रहा है? He has said that H is making HCl, और या आप ये कह सकते हैं कि जैसे HH2 बनाता है कि डाई एटॉमिक, तो ये F2 बनाता है, ये Cl2 बनाता है, ऐसे इन्होंने बताया कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी और वैलेंसी 1 हो गई, तो इन सब की प्रॉपर्टी एक है। इसी तरीके से ये NH3 और PH3 बनते हैं, ये NH3 और PH3, तो इन्होंने कहा देखो सेम प्रॉपर्टी है, ये H2O बनाता है और ये H2S बना लेता है क्या? ठीक है, बात समझ आ गई? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हो, ये तो पढ़ाई है। अच्छा, ये पढ़ा है कार्बन, क्या ये CH4 बनाता है, मीथेन, और ये क्या ग्रीस है, सिलेन, जो साइकिल में ग्रीस लगाते हो वही है, तो कार्बन और सिलिकॉन भी सेम हो गए। BCl3 ACl3 AlCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, इसी तरीके से BeCl2 MgCl2 NiCl NaCl, तो इन्होंने कहा सारी प्रॉपर्टीज सेम है, तो ये एक्टिव मेटल्स हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं, ऐसे हम देखते जाएं तो प्रॉपर्टी सेम आ रही है। ऐसा इन्होंने कहा, देखो बिल्कुल हमने क्रम से लगाया है। और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास? बोलो इनका 1 है, फिर इसका 3 ले लिया, फिर देखो बेरिलियम है, तो बेरिलियम में 4 होता है तो 9 आ गया, फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, तो अब यहाँ पर 5 है तो 11 12 14 16 बढ़ रहा है कि नहीं? देयर मास नंबर इज इंक्रीजिंग, मास नंबर में U लगा दो तो एटॉमिक मास हो जाएगा। फिर उनकी अपनी अबेंडेंस होती है आइसोटोप्स की, वो भी आपने कैलकुलेट की है 9th में, तो उससे थोड़ा डेसिमल या फ्रैक्शन में आ जाता है। तो धीरे धीरे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए, देन एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स विद द इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट्स। किसमें रिजेंबल करता है? प्रॉपर्टीज। अब जरा देखो, though this is a better one than the Dobie-Renius triad that was so primitive, however still there were certain limitations of this. So what were the limitations or drawbacks? Now सर पहला तो नोबल गैस नहीं तब तक फाउंड हुआ। हाँ, so the table, the law holds good up to calcium. After that it badly tumbles down, लड़खड़ा जाता है, क्योंकि कैल्शियम तक ये सब सही है, लेकिन इसके बाद जो क्रोमियम है ये बहुत हार्ड मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट मेटल है, अब बोरॉन मेटलॉइड है, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है। टाइटेनियम इतना सुंदर मेटल है कि उसके नाम पे टाइटेनिक बन गया जहाज, इतना बढ़िया मेटल कोई नहीं, और उसको सिलिकॉन के साथ रख दिया जो ग्रीस बनाता है। आप ये देखिए, तो आप उसको मेटल और सेमी मेटल यानी मेटलॉइड के साथ एक अच्छे मेटल को रख रहे हैं, इट इज वेरी बैड। आप एक Mn मैग्नीज जो कि मेटल है उसको नॉन मेटल के साथ डाल दे रहे हैं, और आयरन को गैसेस के साथ और नॉन मेटल के साथ डाल दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? इट इज नॉट गुड। एंड एट सर्टेन प्लेसेस यू हैव पुट डुप्लेट two elements, it is just articulated। आपने अपनी चीज को जो है नियम इम्पोज कर दिया है, बनाने के लिए आपने गलत चीजें इस्तेमाल की हैं। One found me said why you have placed at certain places 2 elements or pair of elements, so these are the drawbacks. The law holds good up to calcium, after that there is no such resemblance found. The law holds good up to calcium, after that there is no such found. When noble gases were discovered, it is every 9th element which resembled
तो यहाँ पर मान लीजिए नोबेल गैसेस डिस्कवर्ड हो गई, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाएगी। अब यहाँ पर लीवे बकनॉफ मीना, यहाँ आ जाएगा मीना, और फिर यहाँ आर्गन। तो एवरी 9th एलिमेंट अब रिजेंबल करेगा। तो लोगों ने उनसे पूछा क्या कि अब क्या संगीत में 9 स्वर हो गए हैं, तो अब 9वां एलिमेंट हो रहा था। सो आफ्टर discovery of novel gases, every 9th element resembled with first element, डिफाइन का मतलब उनके इस नियम को झुठलाते हुए, डिफाइन हिज बेसिक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। Define his law correlating with octaves of music. At certain places, pair of elements are kept, and in certain vertical columns या group कह सकते हैं, metals and non-metals both are kept. ठीक है? At certain places पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, कोनी लिख देना, कोबाल्ट एंड निकल, वर्क केप्ट टुगेदर, एंड एट सर्टेन प्लेसेस मेटल्स, मैग्नीज इज केप्ट विद नॉन मेटल्स, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। मैग्नीज मेटल is kept। सर कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज सिमिलर है क्या? हाँ बिल्कुल। सर ये भी है कि उसको साथ में रख दिया, इसको रखना चाहिए था ऊपर नीचे। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं तो आपके जो टेबुलर फॉर्म है उसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आने चाहिए। सो मैग्नीज मेटल इज केप्ट विद नॉन मेटल्स, सिंपली भी लिख सकते हो मेटल्स आर ग्रुप्ड विद नॉन मेटल्स। सो मैग्नीज देख लो किसके साथ रखा गया, with non-metals phosphorus and nitrogen। There are also other places such loopholes found, और भी कई जगह आप देख सकते हो, टाइटेनियम को ही रख दिया सिलिकॉन के साथ, तो वो सेमी मेटल है। So these are the drawbacks of this, and there were 56 elements discovered, however he has given up to 30 elements in his table। अपने में कितने को स्थान दिया है? 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 so 63 elements were 56 elements were discovered, but he has given place only 35 elements। दूसरों को जगह ही नहीं दी। सर उसने अज्यूम कर लिया था ना कि इससे ज़्यादा एलिमेंट फाउंड भी नहीं होंगे। हाँ ये भी उसने अज्यूम किया था कि अब और नहीं फाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट्स वर known at that time, but only 35 elements have got place in his table। In his table, also he has announced that no more elements will be discovered in future, जबकि elements will keep on discovering। Also he has announced that no more
elements will be discovered in future. तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, जबकि होते रहे आगे ना। But it was a better version than the previous one. Okay. Now, after 1866, Mendeleev projected new periodic table in 72. 72 का मतलब 6 साल बाद. डोबिगिनियर्स tried 1817 में आया था, चाहे तो लिख लें. 1817 के बाद 1866 में आया है ये, 50 साल बाद. 1817 में डोबिगिनियर ट्रायल था. और अब 6 इयर्स के बाद नया ट्रायल आ गया. पहले तो म्यूजिक के नोट्स से कंपेयर किया था. ये क्या है अभी बोला है. Now, Dmitry Ivanovich Mendeleev, he was a Russian chemist and the 17th child of his visionary mother. अपनी माँ की 17वीं संतान थी. His mother has always taught Mendeleev, ये बुक में ही लिखा है आपके. His mother has taught that nature is always truth. Anything cannot violate nature. The same thing he has used in his periodic law. उनकी माँ ने बताया कि नेचर से बड़ा कोई नहीं है. So nature is ultimate. It always prevails, and that kind of things is used by Mendeleev in his table. Now let us see what kind of table. उनको जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जनक भी कहा जाता है. He is said to be father of modern periodic table. So Mendeleev's periodic table. Mendeleev's first time he has used chemical properties for the resemblance or matching the properties of elements. Also, it was projected by
1872 में दिया. So at that time 63 elements were known and the Mendeleev's periodic table has been given in your book. So he has made 8 groups. See, so what are the 8 groups he has made? The vertical are the groups. So group 1. Groups are denoted by Roman letters. ये Roman letters हैं और Arabic में नंबर होते हैं. So groups are denoted by Roman letters. 5, 6, 7, and 8. After that, group he has shown these are groups. Vertically, these were groups. And now, horizontal. So vertical are the columns. Vertical are the columns. These are the columns. And horizontal are the rows. These are columns. Now there were 8 groups. So vertical columns and horizontal rows. First 3 rows are having no subdivision. After that there were first series and second series. So these are rows. Rows you can say periods. Periods को rows कहा जा सकता है. वैसे अगर मैं ये लिख दूं horizontal rows तो इस तरीके से ये डुप्लीकेसी हो जाएगी. हम वर्टिकल कॉलम कभी लिख नहीं सकते. आप ये नहीं कहना वर्टिकल कॉलम. कॉलम का मतलब ही होता है वर्टिकल और रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल. दोनों चीज नहीं लिखी जाती. तो अगर रोज लिख लो आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप नया नया सीख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल लिख लो. तो रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं. ठीक. नाउ देयर वर 7 periods, 6 periods. में 6 है. अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने कई बार अपनी टेबल चेंज की. तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, देयर वर 2 series. So first series and second series. So this is first series and second series. Now this is fourth one. तो फोर्थ में इन्होंने 2 डिवीजन, सब डिवीजन कर दिए कि फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज. आप चाहे तो इसमें एक थिन लाइन बना सकते हैं कि भाई ये तो एक डिवीजन है. तो ऐसे आप बना सकते हैं. ऐसे इसी तरीके से जो फिफ्थ पीरियड है, अगेन फिफ्थ पीरियड में भी इन्होंने 2 सब डिवीजन किए. देयर वर 2 सीरीज टेकन. व्हाट वर दीज? These were taken as first series and second series. So first series and second series. In the similar manner, sixth period. This table consisted of 6 period and 8 groups. Now every group is having subdivision. ऐसा नहीं कि ग्रुप को छोड़ दिया. जहां इन्होंने पीरियड के भी काट निकाले तो ग्रुप को भी नहीं छोड़ा, ग्रुप के 2 टुकड़े कर डाले इसमें भी. सो उस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया? बुक में देख के बताओ. हाँ. सो द ग्रुप्स आर नेम्ड एज A and B. And he has subdivided
the eighth group into 3 divisions. तो 3 उन्होंने किए। अब जरा देखो कि इसको हम लिख लें A B A B A B A B A B A B, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 8 है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। इसका क्या मतलब है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स which are between most active metals and most active non-metal, उनके बीच में जो गुलाबी रंग के पिंक कलर के, उसमें लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो 3rd से 12th तक है उनको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3rd से 12th तक के जितने एलिमेंट्स हैं these are known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नाउ तो ये इनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट है। किसके किसके इंटरमीडिएट है? Their properties are intermediate between most active metal and most active non-metal, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है, most active non-metal है, तो ये जो है यहाँ रखे गए, इन्होंने ये ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको Fe दिख रहा है क्या? आयरन। तो इनकी वेरिएबल वैलेंसी भी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जैसे Fe2O3 भी बनाता है, FeO भी बनाता है, Fe3O4 भी बनाता है। ऐसे बहुत सारे हैं। कॉपर है, CuO भी बनाता है, Cu2O भी बनाता है। सब इसी में है कि नहीं? सो दे आर शोइंग वेरिएबल वैलेंसीज, दे आर यूज्ड एज अलॉयज, दे गिव कलरफुल सॉल्ट। क्या कॉपर सल्फेट का कलरफुल सॉल्ट है? FeSO4 का कलरफुल सॉल्ट है, Fe2O3 का कलरफुल सॉल्ट है। इन्हीं के सिर्फ रंगीन सॉल्ट हैं, अब बाकी फर्स्ट और सेकंड के सफेद सॉल्ट हैं। जितने देख लो वाइट है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैं। और जो अगर आपको कलर्ड दिख रहा है वो देख लेना निकल का, ये जो ग्रीन ग्रीन है, और जो ये पर्पल कलर का है सब कोबाल्ट का है। तो इस तरीके से जो बीच वाले हैं इन्हीं का कलरफुल सॉल्ट है। समझ में आ गई बात? अब देखो, तो अब हम लिखते हैं द फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं? Now, of Mendeleev's periodic table. So, in his table there are 8 vertical columns called groups. Each group is subdivided into 2 subgroups A and B. उन्हें subgroups कहेंगे। Each group is subdivided into 2 subgroups A and B. Groups are numbered in Roman लैंग्वेज में इनको नेमिंग दी गई है 1 to 8. Horizontal rows, there are 6 horizontal rows called periods. There are 6 horizontal rows called periods exists in his table. These are numbered from 1 to 6 अरेबिक नंबर। ऊपर रोमन में किया और नीचे किस में किया? These are numbered in अरेबिक। ये अरेबिक। आप बेटा नोट नहीं कर रहे हो क्या? क्यों नोट किया करो और सब लोग करो।
So these are numbered in Arabic from 1 to 6. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड क्या हुआ? फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड ईच पीरियड इज सब डिवाइडेड इनटू फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज. फोर्थ पीरियड onwards each period is sub divided into first series and second series. अच्छा हमारे में भी फोर्थ है, फोर्थ में अभी देखो इसमें क्या करोगे, 8 है तो 8 में आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट्स होने चाहिए कि नहीं? 18 का ग्रुप बना है कि नहीं? अब भाई 18 नहीं है तो उन्होंने 0 ग्रुप करके फिर नॉर्मल गैस जोड़ दिया तो उनके हो गए ना पूरे 18, सारे के सारे आ जाएंगे कि नहीं? देखो 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17 और 17 और 1 18. तो अभी आपके में कितने टोटल इसमें कॉलम से बताओ? 9. हाँ हाँ कितने? हाँ? आप कभी कभी देख लिया करो बोर्ड पे, ठीक है? आप बिल्कुल नहीं देखते, कभी कभी देखते, आपको कुछ कभी नहीं देखते हो, जितनी देर हो आप उधर देखते हो, वहां का रिफ्लेक्शन ही नहीं जाता होगा. इतनी बात है, चलो इतनी बात हो गई. तो अब इसमें 17 आ रहे हैं, एक कम है तो वो 0 ग्रुप करके जोड़ लिया जाएगा. हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड्स वर देयर इन दिस पीरियड? How many groups and periods? बोलो यश. Sir, 8 groups हाँ. and 6 periods. ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, चलो कोई बात नहीं. अब जरा देखें कि जो फर्स्ट इसमें है देन इट इज टर्म एज H. तो फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप H कहीं भी लिख दें. फर्स्ट सीरीज में मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया. सेकंड में आप क्या लिख लें, सेकंड में कोई बात ही नहीं है क्योंकि कहीं भी लिखते जाओ, ऊपर नीचे का तो कोई है नहीं. सो ली हा ही लीबे बकनॉफ था, सो हा ही हीलियम तो नहीं था. लीबे बकनॉफ, लीबे बक नॉफ, अपने अपने में लिख रहा हूं. लीबे बकनॉफ, ट्रांजिशन छोड़ दिया. हा ही लीबे बकनॉफ, पहले भी इसी में देखो लीबे बकनॉफ पूरा लिख दिया, ये यही है. ठीक है, और उसके बाद नी ना मगालसी, नी तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नियॉन था ही नहीं. नी ना, तो नी ना, अब इसमें भी नीचे नीचे लिखते जाओ. नी ना मग आल सी पी एस, कल यहाँ तक कर दिया. अभी ए आर भी नहीं है, छोड़ दो. आर्गन तो नहीं है ना, आर्गन तो लास्ट ग्रुप है. आर्गन क्या है? नोबल गैस है. ओके, नाउ आर सी, तो पीएस कलर के का, अब यहां से शुरू किया इन्होंने ए का. ये देख रहे हो क्या ये मिलता जुलता है? के इसके नीचे लिखा है, इसको कहेंगे अपर लेफ्ट साइड और इसको कहेंगे लोअर राइट साइड. यहाँ यहाँ जहाँ भी मर्जी चढ़ाएंगे. अब इसके आगे क्या करेंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन जो रिजेंबल करेगा वहीं पे लिखेंगे. क्योंकि इनकी माँ ने कहा था बेटा नेचर सबसे बड़ा है, नेचर हमेशा ठीक होता है, तो जो सही हो वही लिखना. तो इन्होंने इम्पोज नहीं किया न्यूलैंड की तरह कि हम 2 डाल देंगे जिससे अगला वाला मिल जाए, वैसा नहीं किया उन्होंने. जहाँ जहाँ पर भी है के, और ये तो सब मिलता जुलता है ना, क्योंकि मैग्नीशियम के नीचे आप देख लो कैल्शियम तो आ ही रहा है, वो उसी पीरियड का, उसी फैमिली का है. तो बेमग का पीएस कलर के का, फिर अब स्कटी विक्रम बिल्कुल सीरियली आ रहा है. जरा देखो जैसे मैंने लिखाया था स्कटी, ठीक है, स्कटी. और टी कहाँ पर आया है? यहाँ पे इन्होंने सही कर दिया, जो उसने टाइटेनियम सिलिकॉन पे नीचे डाल दिया था ना,
हमने कहा नहीं रखेंगे यहीं पर, लेकिन थोड़ी चालाकी दिखाई और क्या। सर इधर रखने से फायदा क्या होगा? फायदा कुछ नहीं, कह रहे कि इसका ए वाला ए से मिलेगा, बी का बी से मिलेगा। अपने मन से मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ भी नहीं रख सकते थे क्या? बस सिर्फ हटा दिया कि नहीं देखो हम मेटलॉइड से नहीं रख रहे हैं, नॉन मेटलॉइड अच्छा काम कर रहे हैं और कोई बात नहीं। स्कटी विक्रमन फेकोनिकेजम, बोलो वी यहाँ रख दे वेनेडियम, जबकि वो मेटल है, कितना बढ़िया नहीं रख सकते क्योंकि अभी बीच वाले तो सब मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल। ऐसे यहाँ कहाँ रख दोगे वेनेडियम को? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम नॉन मेटल के साथ नहीं रखेंगे, जरा खिसका देते हैं। यहाँ से इन्होंने खिसका ही दिया, बोले अब सब खिसको थोड़ा थोड़ा। विक्रमन निकूजन, सल्फर के साथ क्रोमियम तो नहीं रख सकते हो, क्रोमियम के तो गैस स्टोव बनते हैं, और कहाँ सल्फर नॉन मेटल, तो क्रोमियम यहाँ डाल दिया। फिर उसके बाद विक्रमन, यही हमारा ऑब्जर्वेशन था कि क्लोरीन के साथ मैग्नीज क्यों डाला पिछले में, अब उन्होंने ठीक कर दिया, यहाँ से खिसका दिया, ठीक है। सो स्कटी विक्रमन और फेकोनिकूजन, ये बस एक साथ लिख दिया, फेकोनिकूजन एक साथ आ गया कि नहीं? सर इसने 8 ग्रुप में 3 एलिमेंट क्यों ले लिए? मतलब 8 ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वैसे ये सब भी ट्रांजिशन है, लेकिन उनको पता ही नहीं था उस समय की ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, दे कैन फॉर्म एलॉय, दे हैव आइडेंटिकल रेडियस, तो इसलिए अगर एक जैसी ईंटें हों, एक जैसा रेडियस हो, तो क्या उससे महल बनाया जा सकता है? तो एक जैसा सबका रेडियस होता है, ये एलॉय बना सकते हैं। कैटलिस्ट है क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी है, मर्जी हो जिसको एक वैलेंसी ले, जिसको 2 वैलेंसी ले, इसलिए ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करते हैं? क्या किसी रिएक्शन को तेज कर सकते हैं? तो वेरिएबल वैलेंसी वाला ये काम कर सकता है, जो बार्गेनिंग कर सके, ये अपनी वैलेंसी में बार्गेनिंग कर लेता है, देख लो, तो कैटलिस्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ गया, वही सब चीजें लिख रहे हैं। निकूजन 30 तक तो आते ही हैं। निकूजन, अब आगे देखो, कॉपर को यहाँ रखोगे कि खिसका दोगे? क्योंकि वो तो इसमें तो आग लग जाती है, उसमें खाना बनता है, इसके साथ नहीं रख सकते, ये सब में तो आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। सो निकूजन, जिंक यहाँ डाल दिया, कैल्शियम के साथ भी नहीं डाल सकते, कैल्शियम भी इट इज वेरी एक्टिव, तो जिंक उतना एक्टिव नहीं है, तो जिंक के साथ डाल दिया। फिर इसके बाद एल्युमिनियम की गैलियम से मेल खाती है। अब जरा देखो, स्कटी को भी इन्होंने इधर खिसका दिया था, इस गैलियम सिर्फ 2 को रखा था, बाकी को खिसका दिया। अब यहाँ पर अलगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, गैलियम रखा नहीं, बोला कि आगे डिस्कवर होगा एक का एल्यूमिनियम, उसका नाम क्या दे दिया? एक ऐसा होगा जो एल्यूमिनियम जैसा होगा, बाद में उसका गैलियम नाम दे दिया गया। हाउएवर एक का एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर एक का सिलिकॉन और एक का बोरॉन, तो पस्सी अलगा सीजे, तो पस्सी। अब जरा देखो, दैट इज, यहाँ पर आप देखो कि पस्सी, ये भी स्कैंडियम भी नहीं डिस्कवर हुआ, यहाँ भी लिखो स्कैंडियम, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फर्क है, 3 एलिमेंट ऐसे लिखो। अब क्या बोलोगे? जब ये डिस्कवर हो जाए तो इसको कहोगे SC, स्कैंडियम बोलोगे, पस्सी अलगा, और इसको सर जर्मनी। अब यहाँ जर्मेनियम, तो इसलिए यहाँ पर जो है पस्सी अलगा CJ, क्या वो सिलिकॉन की तरह है? एक का सिलिकॉन, इसका नाम क्या पड़ा? एक का सिलिकॉन, बाद में जर्मेनियम रख दिया गया, इसका नाम क्या पड़ा? एक का एल्यूमिनियम, एक संस्कृत से लिया गया, एक एल्यूमिनियम, एक, और ये चीज आई, और ये क्या आई? एक का बोरॉन, एक बोरॉन, संस्कृत का वर्ड था, क्योंकि जो वहां से आए हम लोग भी मिडिल ईस्ट से ही तो आर्यंस आए हैं, तो हमारा जो जीन है वो रशियंस के साथ मैच खाता है, और तो जबकि इधर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका जीन हमारे साथ मैच नहीं करता। वी आर मोर मैचिंग, एशियंस आर डिफरेंट जीन, और वो उनका अलग है, तो संस्कृत वहीं से आई है यहाँ पर, दैट्स वाई he has given, even there you can, they are chanting Hare Rama Hare Krishna, Russians, because our and their genomes are, patterns are also same, ऐसा होता है। तो ये चीज बात हो गई, तो 3 चीज आपको समझ में आ गई, तो ये चीज हो गई, पहली बात आपने नोट कर ली। अब आगे बढ़े, यहाँ तक आपने समझ लिया ना कि ही लीबे बकनॉफ नीना मगालसी PS कलर के का स्कटी विक्रम ना फेको निकूजन तक पहुंच गए, निकूजन। अब आगे
फिर हमने ये 3 जो एलिमेंट है वो अनडिस्कवर्ड थे वो लिख लिए, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस उन्होंने कर दिया। फिर इसके बाद अब क्या हुआ, न पी आस सब बी आई। तो अब जरा देखो, न पी आस सब बी आई, जब आगे की क्लास में पढ़ोगे तो देख लेना ये एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? फूटे कुल्हड़ बारात आई, FCLBRI है, फूटे कुल्हड़ बारात आई एट। फिर उसके बाद ओ शशि टीको, ये एक चैप्टर का नाम, एक फैमिली एक ही जैसे हैं, बिल्कुल बिहेव करते हैं। अगर आपको 11th में चैप्टर मिलेंगे तो ओ शशि टीको चैप्टर पढ़ो 20 दिन तक वो शशि टीको। फिर पढ़ाया जाएगा नपी आज सब भी आई, तो ब्लॉक के नाम से चैप्टर है। हाँ ब्लॉक के नाम से चैप्टर है। ओ शशि टीको पढ़ाया जाएगा, नपी आज सब भी आई, कसी गेसन पीबी, ये 5 मेमोरी पढ़ने हैं आपको उस चैप्टर में। तो आपके टीचर बता रहे कि कसी गेसन पीबी से आएगा क्या। फिर बाल गाइन टीएल, तो बाल गाइन टीएल क्या है, एक चैप्टर है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ग्रुप वाइज मैच करती है। फिर और इधर आ जाओ, बेमक का असर 12 और हलीना केरब सीएस पर, समझ में आ गए, ये सारे चैप्टर्स हैं। और अब जो ये डी ब्लॉक वाले बीच वाले जिसको हम ट्रांजिशन गुलाबी वाले, ये ऐसे ऐसे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है। स्कटी विक्रम न फेंको निकूजन, पहला वर्ड पढ़ो जरा, स्कटी विक्रम न फेंको निकूजन, वाइजर नबी नॉट क्रूर एचपी दाग सीडी। देखो फिर से पढ़ो, वाइजर नबी नॉट क्रूर एचपी दाग सीडी, ठीक है। और ये जो खाली जगह है उसमें लेनदेनी है, नीचे किसका जगह है, आप देखो एरो बना के नीचे एरो। तो ला हफ्ता वरी ओशीर, ला हफ्ता वरी ओशीर पटाऊ एचजी, ठीक है। और अगला देखो ए सी है, एपीनियम आ जाएगा। अकरफ डूबा सगे भाई हसमत देश राग कण, अकरफ डूबा सगे भाई हसमत देश राग कण, ये इतने चैप्टर हैं। तो देखो यहाँ पर बन गया क्या, यहाँ देखो हलीना के, अब रब सीएस पर देख लो, बुक में लिखा है क्या, हलीना के रब और सीएस, सीएस 6th में है, वहां भी 6th में, यहाँ भी 6th में, ठीक। अच्छा यहाँ बताओ बेमक का के नीचे क्या लिखोगे, बेमक का सर 12, जिसका कोई मग नहीं है उसका सर उसके 12 सर हैं, सर 12, इसके आप देखिए तो बेमक का सर 12। फिर इसके बाद जिंक कैडमियम, कैडमियम और एचजी, इन तीनों की क्या खास बात है, ये 3 ऐसे बदनाम करते हैं ये ट्रांजिशन, इन तीनों के वाइट साल्ट हैं। जिंक का कोई भी साल्ट है, जेडन हो, दांतों में वो लगाई जाती है जब गड्ढा हो जाता है, कहते हैं जिंक ऑक्साइड क्लियर डाल दिया, वाइट जिंक ऑक्साइड बिल्कुल सुर्ख वाइट है, जेडन हो रखा हुआ है। तो बताओ ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ, जिंक ऑक्साइड, बताओ वाइट। जिंक का देख लो, कैडमियम, कैडमियम के यहाँ जितने साल्ट रखे सब वाइट है। यही 3 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो हैं बट इनके सॉल्ट्स कैसे हैं, वाइट। तो जिंक कैडमियम और मरकरी को एक साथ रखा गया, देख लो जिंक कैडमियम मरकरी तीनों 12वें ग्रुप हैं, 12th ग्रुप देख लीजिए आप। तो क्या यहाँ पर भी वैसे रखे गए हैं, आगे देखो ये मर्क्यूरी का भी सॉल्ट है, हाँ मरकरी के तो सॉल्ट होते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, कैलोमल, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। मरकरी का चैप्टर ही है पूरा है, कितने सारे सॉल्ट, ठीक है। कार्बोरेंडम, देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स मरकरी के। अब जरा देखो कि आगे बढ़ने पर हम यहाँ पर देख ले रहे हैं जिंक कैडमियम एचजी, और फिर इस कटी तक कर लिया, गैलियम तक कर लिया, फिर वाई और एल, ये बिल्कुल वही है। इसका स्कैंडियम के नीचे क्या वाई है फिर एल है क्या, वही तो है, वही यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ देख लो, अब जर्मेनियम के नीचे देखो क्या कसी गेसन पीबी कहीं दिख रहा है, कसी गेसन पीबी 14th ग्रुप में है,
तो ऐसे ही इज्जत के साथ लिख दीजिए कसी गे सन पीबी। ऐसे ही कसिगेशन पीबी हमने लिख दिया। नेक्स्ट इज कसिगेशन पीबी। इसी तरीके से टी आई है तो टी आई के नीचे जरकोनियम है, ठीक है। क्या वाई जर नबी है? वाई जर नबी, बिल्कुल वही लिख दो, वाई जर नबी। फिर मॉट क्रूर एचपी, बिल्कुल वही चीज लिखते जाइए, मॉट क्रूर एचपी दाग सीधी है, बिल्कुल वही कि नहीं? वाई जर नबी मॉट क्रूर एचपी दाग, वही चीज लिख दी। ये भी वही लिखा, स्कटी विक्रमन फेको निकूजन, नी कूजन यहां चला गया। वाइजर नबी मॉट क्रूर एचपी फिर दाग, यहाँ एजी आना चाहिए था, देखो बुक में एजी लिखा है क्या? दाग सीडी है, वही चीज की नहीं? वाइजर नबी मॉट क्रूर एचपी दाग सीडी, हम इसकी निमोनिक्स लिखवा देंगे। अब जरा आगे देखिए, इसके आगे क्या दिया कि अब यहाँ पर देखिए कि कसिगेशन पीबी हो गया, कसिगेशन पीबी न पिया सब दिया। ओ ससी टीपो चेक करो जरा, ओ ससी टीपो, सेलिनियम लिखिए और टेल्यूरियम अपोलिनियम, ये एक लाइन में आ गया, एक साथ भी आते जा रहे हैं। नपिया सब भी आई, 15th ग्रुप 16th ग्रुप, ओ ससी टीपो, वहां से देख रहे हैं आप। और अब देखो फूटे कुल्लड़, तो अब आगे यहाँ क्या आना चाहिए? क्या बारात, और यहाँ आई। ऐड लिखना हो तो लिख दो, उस समय डिस्कवर हुआ होगा तो ही लिखा जाएगा। फूटे कुल्लड़ बताते हैं कि नहीं आया था। ओ ससी टीपो, मॉलिब्डिनम, अब देखो मॉलिब्डिनम तो हो गया, और इसी तरीके से ला हफ्ता। अब यहाँ से देखो ला हफ्ता वरी ओशीर, हफ्ता दोगे तो चिंता करोगे, ला हफ्ता वरी, डब्लू का मतलब टंगस्टन। फिर ओशीर अगर लिखा है तो लिख दो, ओशीर भी लिखा है, ला हफ्ता वरी ओशीर पटाऊ एच जी, तो प्लेटिनम यहाँ आ गया, तो पटाऊ ए यू यहाँ लिख दो, पटाऊ एच जी। फिर ठीक है, अब ये पूरा बन गया। इसमें कुछ ग्रुप ऐसे हैं, जैसे पहला वाला लाइन है, तो पहले वाले लाइन को क्या करोगे? फर्स्ट एक को हलीना केरब सीएस पर, हलीना केरब सीएस पर, तो उसको आप लिख रहे हैं हलीना के रब सीएस पर, हलीना के रब सीएस पर, ये फर्स्ट डे है। अब जरा देखो सेकंड डे क्या है? सेकंड डे बेमग का सर 12, बेमग का सर 12, दैट इज बेमग का सर, SR, ये सेकंड हो गया। थर्ड में क्या है? वैसे बाल गाइन सीरियल है, लेकिन अब ये एक का ये बस ये है ना, तो एक का बोरॉन की वजह से इन्होंने बी इधर लिख दिया है, वरना ये बाल गाइन टीएल पूरा बन रहा था। अब जीए के आगे नीचे कुछ लिखा है? गाइन टीएल पूरा ही है सर, बी ग्रुप में डाल दिया। अब देखो इधर लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि एक का बोरॉन, उन्होंने क्या बताया? बस्सी अलगा सीजे, यानी बस्सी अलगा सीजे, याद रखने के लिए। कैसे याद रखोगे बताओ? बस्सी अलगा सीजे, तो बी के साथ क्या आ जाएगा? बस्सी, ऐसे हो गया। और अलगा ए के साथ क्या आ गया? जीए जानते हो क्या होता है? गैलियम, और सी जे ये चीज है। लेकिन जो स्कैंडियम है उसे कहा जाएगा एक्का बोरान, क्योंकि बोरान के नीचे है, तो उन्होंने बताया एक बोरान की तरह का डिस्कवर होगा। अच्छा, गैलियम को क्या बोला जाएगा? एक एल्यूमिनियम की एक एल्यूमिनियम की तरीके का आएगा, और जर्मेनियम को ये चीज होगी। प्रिडिक्ट किया
अच्छा, ये बेमक का असर हमारा आ गया। अब बालगाइन टीएल, आप याद रखो बोरॉन यहाँ हाई है, तो बालगाइन टीएल सर टीएल क्या है? दैट इज टेल्यूरियम। टीएल का देखो थलियम लिखा है कि टेल्यूरियम, टी टेल्यूरियम, थलियम होगा, थलियम। अब देखो थर्ड ए क्या है, दैट इज बालगाइन टीएल, बालगाइन टीएल, बालगाइन टीएल को लिखिए BALGAIN TEL, थर्ड हो गया। फोर्थ में कुछ बन रहा है, कसीगेशन पीबी, तो फोर्थ ए कसीगेशन पीबी, कसीगेशन पीबी। देखो अब देखिए फिफ्थ में कुछ बन रहा है, नपी आस सब बी आई, फिफ्थ ए नपी आस सब बी आई, दैट इज NPAS सब बी आई। सिक्स्थ ए में क्या बन रहा है, ओ शशि टीको, ओ शशि टीको, ओ शशि टीको। और इसी तरीके से सेवेंथ में क्या बन रहा है, फूटे कुल्हड़ बारात आई, सेवन फूटे कुल्हड़ बारात आई, दैट इज FCLBR। ये बात हो गई, फूटे कुल्हड़ बारात आई। बाकी तो स्कटी विक्रमन पेकोनी पूजन है, वो हम बाद में देख लेंगे। वाइजर नबी मॉट टू HP दाग सीरीज, ये वाला दूसरा, वो सब छोड़ दो बट, लेकिन लंबे वाले तो आपको समझ में आ गए ना, वर्टिकल वाले। तो वर्टिकल में क्योंकि यही अभी हमें मॉडर्न के लिए चाहिए, और मॉडर्न के लिए नहीं चाहिए ये आपको, अभी अगर आगे पढ़ते रहोगे कहीं भी, तो अगर साइंस के संपर्क में हो तो ये चाहिए ही चाहिए मार्क्स लाने के लिए। इसी से सब कुछ पता चल जाए, ये कोड है, इससे हर चीज़ पता चल जाएगी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, हर चीज़ पता चल जाएगी। अब देखो इतनी बात हो गई, नहीं तो इतना इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं। तो दो प्रॉपर्टी देखी आपने, पहली कि कितने कॉलम्स थे, और दूसरी चीज क्या देखी, कितने ग्रुप्स। जो रोज थे, ठीक है, रोज थे तो रोज को ग्रुप बोला गया, और कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया, और रोज को पीरियड्स कहा गया ना। So these were two salient features of Mendeleev periodic classification। अब देखें ओके, सब डिवीजन भी हमने बता दिया, इनमें सब डिवीजन ऑफ सीरीज है। आगे देखो, सो इसके अलावा इनकी और पीरियोडिक टेबल क्या है कि he has arranged elements in increasing order of atomic mass, ठीक है। so he has arranged in atomic masses, ऐसा है, ठीक है। एंड उन्होंने प्लेग कार्ड बना लिए थे कि एटॉमिक मास के क्रम में तो लगाते जा रहे थे, लेकिन जिनकी जिनकी प्रॉपर्टी थी फिर उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे थे, वो वापस आके वहीं पिन अप कर देते, जैसे एक ऐसा बोर्ड नहीं होता जिस पे पिन लगा दो। तो प्लेग कार्ड लगाने से उनको सुविधा मिली, उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसमें लिखी हुई थी। तो उससे उन्होंने काफ़ी समय लगाया कि सबसे ज़्यादा था कि हाउ टू फैसिलिटेट टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो उनका मुख्य ये था कि गलत जगह गलत ना लगाओ, ये नहीं कि नॉन मेटल के साथ मेटल ही डाल दो, मेरा नियम सबसे बड़ा है फिर चाहे मेटल नॉन मेटल, तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। कहा प्रॉपर्टीज पहले, नियम गलत हो जाए भले, बहुत बड़ी बात है। नियम बना रहे, कह रहे माई लॉ इज इंफीरियर, और
but the properties are superior. What was the Mendeleev's periodic law? If elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then after certain interval, he has never coded that after 8th element, 9th element, after certain interval. So the properties of elements are that is repeated periodically. वो कुछ समय बाद फिर वही प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये बोला है ना, सेफ रहे कि नहीं? सो रिपीट करो जरा एक बार. Mendeleev stated after some interval the property of the element will be repeated property of the. यश बताओ. If elements are arranged in increasing order of their atomic mass, they are similar. They have similar property after some interval. So that is properties are repeated periodically. Periodically मतलब कुछ पीरियड के बाद. जैसे अगर हम कहें कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो आफ्टर 365 days it will come to same position. So its position is periodic function of time. यानी आफ्टर किसके बाद वो आएगी? 365 दिन के बाद वहीं आ जाएगी. So that is position of earth is periodic function of time. इसमें पीरियड किसका ले रहे हो, क्या टाइम का? अब यहाँ क्या लोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास. किसके बाद वो फिर से रिपीट हो रही? क्या कुछ एटॉमिक मास के बाद फिर रिपीट हो रही? जैसे धरती की परिक्रमा करती ना धरती सूर्य की, तो द पोजीशन ऑफ अर्थ, ये किसका पीरियोडिक फंक्शन है? टाइम का है, क्योंकि टाइम के इंटरवल के बाद फिर वहीं आ जाएगी. जैसे योर फ्रीक्वेंसी, योर कमिंग हियर, it is periodic function of time. After every 24 hour you appear here, so it is the periodic function. हो गया कि नहीं? Periodic function of time. इतनी बात समझ में आ गई? तो उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि arrange in increasing order of atomic mass and in such a manner that the elements having similar properties come in same ग्रुप्स. ग्रुप समझते हो ना, ये वर्टिकल वाले को ग्रुप कहते हैं. इन सच ए मैनर, इन सच ए मैनर दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर, वो एक ही ग्रुप में आए, इन सेम ग्रुप. ऐसा करके एक ग्रुप में आ गए. अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट मीन्स दे आर हैविंग वेरिएबल वैलेंसी. जैसा हमने आपको बता दिया था, इनकी वैलेंसी कैसी होती है? वेरिएबल वैलेंसी. और इनकी प्रॉपर्टीज किसके किसके बीच होती है? मोस्ट एक्टिव मेटल एंड मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल के बीच की. तभी तो इनको कहते हैं ट्रांजिट कर गए, ये बीच में आ गए. ट्रांजिट क्या होता है? पाकिस्तान से भारत में ट्रांजिट कर गए, इधर से उधर आ गए, इधर से उधर चले गए, तो वो बीच के हैं, बीच कहीं भी जा आ रहे हैं. सो दीज आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर केप्ट इन 8th ग्रुप. ठीक है, इन ट्राइड्स. ठीक है कि नहीं? ऑल ट्रांजिशन, उस समय नहीं पता था कि ये सब ट्रांजिशन है, नहीं तो ये रखी हुई. So all transition elements are kept in same groups. That is 8th group. ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे रख दिया. He has used. अब इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया. He has used along with physical properties. There is a gradual trend of physical properties. ऊपर से नीचे जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ 20 डिग्री या घटता हुआ, या कुछ डेंसिटी बढ़ती हुई, बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता चला जाता है या बढ़ता जाता है. जहाँ मेटल में बढ़ेगा, नॉन मेटल में जैसा भी होगा देखेंगे. ठीक है कि नहीं? बट ग्रेजुअल ट्रेंड है, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकल एक जैसी है, फिजिकल में डेंसिटी बढ़ती हुई. सो इनकी जो भी ग्रुप है, ऑल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज. ऐसा हमने लिख दिया है ना. Yes.
ऑल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टाइम he used chemical properties as consideration for classification of एलिमेंट्स। तत्वों के वर्गीकरण के लिए पहली बार इन्होंने रासायनिक गुणों का उपयोग किया। जस्ट सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो इन्होंने सबसे ऊपर अपने बुक में देखो, ऑक्साइड, सभी के ऑक्साइड बनते हैं और सभी के हाइड्राइड बनते हैं। तो उन्होंने फार्मूला लिया कि जो जिस ग्रुप का होगा उसकी वैसी वैलेंसी होगी, वैसा वो ऑक्साइड या हाइड्राइड बनाएगा। तो ऑक्साइड का भी फार्मूला बता दिया और हाइड्राइड का भी। इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप का होगा उसका ऑक्साइड कैसा बनेगा, जो सेकंड का होगा, थर्ड फोर्थ का होगा, तो उनके क्या फार्मूले होंगे, उनकी वैलेंसी क्या होगी, ऐसा बताया। इन्होंने वैलेंसी भी बता दी। वैसे तो बोले फर्स्ट ग्रुप की 1 की वैलेंसी, 2 की वैलेंसी, 3 की, 4 की, फिर 3, 2, 1 ऐसा बता दिया। अच्छा, इसकी बताने की जरूरत नहीं, वेरिएबल वैलेंसी है, इसकी तो नहीं बता सकते। तो अगर इसकी एक की वैलेंसी तो हाइड्रोजन है, तो ये कैसा ऑक्साइड बनाएगा? तो उन्होंने एलिमेंट को R का नाम दिया। R मतलब क्या है? R2O, कोई किसी जनरल के साथ ये R है, R। तो अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो उसका क्या फार्मूला होगा? H2O, Li2O, Na2O, K2O। कैसा बनता है? बनता तो है ना। तो इस तरीके से R2O। अच्छा, ये बताओ बेरिलियम बनाएगा या Mg बनाएगा तो क्या बनाएगा? RO, MgO, DeO, CaO तो जानते ही हो, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर 3 वाला एल्यूमिनियम बनाएगा तो क्या बनाएगा? R2O3। सही है, R2O3 बना देगा। ठीक है, जैसे Al2O3, B2O3 ऐसे बनाएगा। फिर जब 4 है तो क्या RO2, CO2, SiO2 बालू को कहते हैं जो जमीन है। अच्छा, जैसे 3 है, ये क्या बनाएगा? तो 3 के लिए इन्होंने बताया कि 5 वाले के इन्होंने बताया R2O5। इसकी वैलेंसी इन्होंने 5 मान ली होगी वैलेंसी लगता है। N2O5 कुछ होता है? N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये जो हेज है ना प्रदूषण में, दिल्ली के ऊपर चांदनी चौक पे लाल रंग का, वो N2O5 है। ये प्रदूषण है, हाईली एसिडिक गैस है। अगर इसमें पानी डाल दो HNO3 बन जाएगा। N2O5 ही है। ठीक है, अब जैसे 6 है तो 6 के लिए इन्होंने SO3 या RO3। SO3 तो बनता है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, 7 के लिए R2O7, Cl2O7 बनता है लेकिन F2O7 नहीं बनता। जो भी रीज़न वो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, हम आगे देखेंगे। कुछ ना कुछ डिमेरिट है, अभी तो हम फीचर्स देख रहे हैं। लेकिन Cl2O7 तो बनता है। ये RO3, SO3 भी बनता है। तो हम इसके अलग से क्वेश्चन कराएंगे किससे क्या क्या बनता है। अब जैसे ये तो आपने देख लिया कि इनके ऑक्साइड्स हो गए। अच्छा, हाइड्राइड्स क्या हो गए? हाइड्राइड से H है तो H के साथ तो H बनेगा तो HH हो जाएगा, H2 हो जाएगा। HH के साथ तो HH है, H2 नहीं हो जाएगा डाई एटॉमिक। अच्छा, लेकिन बाकी LiH बनता है क्या? NaH बनता है। सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, ये सब बनते हैं। और इनका फार्मूला क्या होता है? क्या NaH माइनस, NiH माइनस। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। सभी मेटल के हाइड्राइड पाए जाते हैं। पूरी टेबल में सारे एलिमेंट्स हाइड्राइड और ऑक्साइड तो बनाते ही हैं। तभी तो उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चुना। बोला इनसे तो कोई नहीं बच पाएगा। सिंगल वैलेंसी कौन नहीं लेना चाहेगा? और हाइड्रोजन देने को भी तैयार है। कहता एक लेना है तो ले लो, देना है तो दे दो। इससे अच्छा कौन मिलेगा? जिसको 4 भी लेना होगा कार्बन को, कहता ठीक है 4 हाइड्रोजन आ जाओ, लग जाओ हमारे चारों। जिसको 3 भी चाहिए वो भी कह रहा अच्छा ठीक है 3 हाइड्रोजन आ जाओ, NH3 बना देंगे। कोई नहीं मिले, हाइड्रोजन से तो सब रिएक्ट करते हैं। जिसे 2 चाहिए H2O, 1 चाहिए वो भी मिल रहा है। और ना इसको देना था तो हाइड्रोजन ने कहा ठीक है तुम देना चाहते हो, हम लेने को तैयार हैं, मैं डुप्लेट बना लूंगा।
लेने को भी तैयार है, देने को भी तैयार है। क्लोरीन कहता तुम लेना चाहते हो तो लो, हमसे लो, मैं HCl बनाने को तैयार हूँ। तो अब ऐसा हाइड्रोजन है तो क्यों नहीं वो सबसे एलिमेंट बनाएगा। ठीक है, तो RH हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर RH भाई RH2, वैसे BeH2 ऐसे बन जाएगा, NgH2 भी बन जाएगा। अब इसके अलावा RH3 कहीं कहीं बनेगा, कहीं कहीं नहीं भी बनेगा, ऐसा नहीं ALH3 नहीं बनता है, लेकिन कहीं अगर आगे वाला बन जाए तो बन जाए। ठीक है, बट RH3 उन्होंने बोला ऐसा बन सकता है, बनता नहीं है। आगे देखो RH4 बन जाएगा क्या, CH4, हाँ सर और ऐसा ही H4 हमने बताया ग्रीस होती है सिलेन, वो भी बन जाएगी। आगे देखो, और RH3 फिर घटने लगेगा, RH3 क्या नाइट्रोजन के साथ NH3 बन जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम वैलेंसी ली जाती है, ये वैलेंसी ना लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में ये पावर है, अगर तुम्हारे पास 7 हैं, जैसे गुंडागर्दी हो, तुम सभी मुझे दो, हफ्ता वसूल 7 के साथ फ्लोरीन से ले रहा है 7। ऑक्सीजन की कैपेसिटी है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब खींच लेगा, और 3 ऑक्सीजन आ जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, क्योंकि एक को 2 चाहिए। ये भी नहीं कि कोई स्टेरिक हिंड्रेंस, सारे दे दो, तो इस तरीके से दे देता है। अब यहाँ देखो इसमें, तो इसमें क्या है, फिर 3 पे आ गए, फिर RH2, और फिर इसके बाद RH, जैसे ये HCl हो गया। तो इस तरीके से हम इसके अलग से करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड कराओ, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ही यूज्ड केमिकल प्रॉपर्टीज एज कंसीडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर दैट ही यूज्ड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। फॉर दैट he used formula of oxides and हाइड्राइड्स, इनके फार्मूले यूज किए। नेक्स्ट इज ना सर हाँ मिशन एलिमेंट्स का कुछ ऑक्साइड हाइड्राइड नहीं है क्या? ऑक्साइड और हाइड्राइड बदलता रहता है, उसके लिए कुछ ये नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा नहीं है। जैसे Fe है ना, तो Fe 97 H100, उसके बीच में जाके सिस्टम बना लेता है, कोई भरोसेमंद नहीं है। ऐसा वैसा नहीं है, बस बीच बीच में हाइड्रोजन घुस जाते हैं, जितने मर्जी घुस जाए, ऐसा तो वह उस टाइप से बनता है, इसलिए नहीं है। बनते हैं लेकिन कोई वो नहीं है। 98 भी बन जाएगा, एक और चला जाए। अच्छा, ये बात हो गई। नेक्स्ट इज कि अब देखो, ऑल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम हैव गॉट प्लेस। उस समय तक 67 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, और मेंडलीव ने क्या सभी को अपने में स्थान दिया। सो ही हैज गिवन प्लेस टू ऑल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ही हैज given place to all elements discovered at that time, even leaving some place, ठीक है, and predicting that these elements will be discovered, forecasting that these elements will be discovered in future. Leaving some place blank, ऐसा भी। He has boldly left some places predicting their features like atomic mass, ये सब पहले से बता दिया in advance, saying these will be discovered in future
फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो एका एल्यूमिनियम, सो एका संस्कृत का वर्ड है एल्यूमिनियम, लाइक एल्यूमिनियम इसका मतलब है एल्यूमिनियम जैसा। सर उससे कैसे मतलब उसने ये सोचा कि ऐसा होगा एल्यूमिनियम जैसे, क्योंकि अब ये जो जिंक के बाद उसको आर्सेनिक मिला, ये सब थे ही नहीं, तो उसने कहा आर्सेनिक की तो इससे प्रॉपर्टी मिल रही है, हम यहाँ कैसे रख दें। उसकी माँ ने बताया था कि नेचर रिजेंबल करता है, तो तुम जहाँ जो सही हो वही रखो, बाद में ऐसा नहीं कि आर्टी मैनिपुलेशन मत करो कि कहीं भी रख दो। तो उसने यहाँ रखा, बोला ये चीज़ खाली, यहाँ कोई आएगा, ऐसा बोल दिया। डेली तो डिस्कवर हो रहे थे। तो एका एल्यूमिनियम उसका क्या नाम दिया गया, क्या गैलियम, और एका बोरॉन, तो वो स्कैंडियम हो गया, और एका सिलिकॉन, तो जर्मेनियम। ये बात समझ में आ गई। एका सिलिकॉन का क्या हो गया, जर्मेनियम। हेलो कोचिंग ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इतना ही रखो आज के लिए। थैंक यू सर। मेरा